آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ADN اردو نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں سید وہاب الحق. خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر دن بھر کی اہم خبروں پر. کورونا پر قابو پانے میں انتظامیہ کی ہر تدبیر ہو رہی ہے ناکام. آج پھر 60 افراد ہوئے کورونا سے متاثر. نئے محلوں میں پھیل رہی ہے وبا. گھروں میں ہی ادا کی جائے گی نماز عید. مولانا نسیم الدین مفتاحی نے بتایا کیسی پڑھی جائے گی نماز. اور کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس کی سخت کارروائی جاری. 171 افراد کے خلاف درج ہوئی FIR. اب خبریں تفصیل سے. 6 دن سخت کرفیو اور احتیاطی اقدامات کے باوجود کورونا کی وبا پھیلتی ہی جا رہی ہے. آج پھر شہر میں 60 افراد اس وبا سے متاثر پائے گئے اور یہ تعداد بڑھ کر اب 1179 ہو گئی ہے. دوسری طرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 مریضوں کو ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے. اب تک 473 مریضوں کو اس وبا سے نجات مل چکی ہے. اس طرح شہر کے نئے علاقے بھی کورونا کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. آج سعیدہ کالونی علاقے میں کورونا کا ایک مریض پایا گیا جس کی وجہ سے اس علاقے میں لوگوں میں خوف و ہراس بڑھ چکا ہے. مسلسل 6 دن سخت کرفیو کے نفاذ، کورونا سے متاثر حساس علاقوں کو پوری طرح سیل کرنے اور متعدد سخت احتیاطی اقدامات کے باوجود شہر میں یہ وبا قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. گھاٹی اسپتال کی لیب میں آج دوپہر تک ہوئی جانچ میں 60 افراد اس وبا سے متاثر پائے گئے اور یہ تعداد بڑھ کر اب 1179 ہو گئی ہے. اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے متاثرہ 3 مریضوں کی موت ہوئی. اب یہ تعداد بڑھ کر 41 پر پہنچ گئی. ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 ایسے مریض جن کا علاج کامیاب رہا انہیں ڈسچارج کر دیا گیا. اس وبا سے بچنے والے مریضوں کی تعداد اب 473 ہو چکی ہے. گھاٹی اسپتال، سول ہاسپٹل اور کارپوریشن کے کووڈ سینٹرز میں اب بھی 650 سے زائد مریضوں کا علاج جاری ہے. آج شہر کے سعیدہ کالونی علاقے میں بھی کورونا کا ایک مریض پایا گیا. یہ علاقہ اب تک اس وبا سے پوری طرح محفوظ مانا جا رہا تھا، لیکن اب ایک مریض کے سامنے آنے سے پورے علاقے میں سخت تشویش اور خوف و ہراس کا ماحول ہے. کورونا کی وجہ سے رمضان المبارک کے معمولات بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. یہ مقدس مہینہ اب آخری ایام میں ہے اور عید قریب ہے. سوشل ڈسٹنس کی پابندی کی وجہ سے اس بار عیدگاہوں میں اور مساجد میں نماز عید کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اب عید کی نماز بھی گھروں میں ہی ادا کی جائے گی. عید کی نماز کا طریقہ عام نمازوں سے تھوڑا مختلف ہے، اس لیے اس سے واقفیت ضروری ہے. اس سلسلے میں ADN اردو نیوز سے ملاقات میں مولانا نسیم مفتاحی نے نماز عید ادا کرنے کے طریقے پر مفصل روشنی ڈالی ہے. کورونا وائرس کی خوفناک وبا کی وجہ سے پوری دنیا انتہائی سنگین دور سے گزر رہی ہے. اس مہلک وبا کی اب تک کوئی دوا دریافت نہیں ہوئی، اس لیے اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل ہی سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے بڑی احتیاط سوشل ڈسٹنس بتائی جاتی ہے. اس پر عمل کے لیے انتہائی سخت اور غیر معمولی قدم اٹھائے گئے. پرہجوم علاقوں، بازاروں، کاروباری اداروں، کارخانوں، دفتروں کے علاوہ شادی بیاہ کی رسومات حتیٰ کہ عبادت گاہوں کو بھی بند کر دیا گیا. ہر قسم کے اجتماع پر پابندی لگا دی گئی. رمضان المبارک کے جاری مہینے میں روزے داروں نے اپنے گھروں میں ہی عبادات کا اہتمام کیا. اب یہ مقدس مہینہ رخصت ہونے پر ہے. مہینہ بھر روزوں کی مشقت اور عبادات کے بعد عید کی خوشیاں منائی جاتی ہیں. عیدگاہ میں جمع ہو کر نماز عید کے ذریعے بارگاہ خدا بندی میں شکر ادا کیا جاتا ہے. لیکن کورونا کرفیو کی وجہ سے عیدگاہ اور مساجد میں عمومی طور پر نماز کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اس بار نماز عید بھی لوگوں کو اپنے گھروں میں ہی ادا کرنی پڑے گی. گھر میں نماز عید کس طرح ادا کی جائے، اس سلسلے میں مولانا نسیم الدین مفتاحی نے تفصیلات بیان کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نماز اشراق کے بعد سے نماز عید کا وقت شروع ہوتا ہے. نماز عید واجب ہے. خواتین کے لیے نماز عید سنت ہے، لیکن وہ بھی عید کی نماز اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں. ہم نے سینکڑوں عیدیں اور بہت سی عیدیں بڑی خوشیوں سے عیدگاہ میں نماز پڑھ کر اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لا کر ادا کی ہیں. اور اب اس موذی وبائی مرض
कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने घरों में ही रमज़ानुल मुबारक की तरावी का और रोज़ों का एहतमाम किए, सदक़ा व खैरात का एहतमाम किए, ज़कात की अदायगी का इल्तिज़ाम किया, गरीबों की मदद की। अब जब ईद की नमाज़ पढ़ने का मौका आया तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी यह है कि हम घरों में ही ईद की नमाज़ पढ़ें। तो मैं चूँकि ये साल में 2 ही मरतबा नमाज होती है और घर में पढ़ रहे हैं, इसलिए उसका तरीक़ा हमारे जो है बुज़ुर्गों के हुक्म पर बता देता हूँ कि ईद उल फितर की 2 रकात नमाज वाजिब है और मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। अल्लाहु अकबर कह के रकात बांधेंगे इमाम साहब और मुक्तदी जो 3 पीछे रहेंगे, और उसके बाद वो सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर, और हाथों को कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। 3 ज़ायद तकबीरें कहने के बाद हाथ बांध देंगे और इमाम साहब एक सूरह फातिहा पहले पढ़ेंगे और उसके साथ एक सूरा पढ़ लेंगे, फिर रुकू करेंगे दोनों सजदे करके। फिर दूसरी रकात के लिए जब इमाम साहब खड़े होंगे तो फिर उन्होंने पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरा पढ़ेंगे, कोई ज़म्मे सूरा करेंगे, लेकिन अभी रुकू में नहीं जाएंगे। रुकू में जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा भी ऐसी करेंगे, तीसरी मर्तबा भी, चौथी मर्तबा रुकू में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे। फिर बकिया नमाज जैसी पढ़ते हैं वैसी इमाम साहब पूरी कर लेंगे और उसके बाद खुतबा मुख्तसर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि ईद का खुतबा जो आप सुनते हैं हमेशा, अगर आपको खुतबा याद नहीं है तो कोई सूरा पढ़ ले खुतबे में, दोनों काफ़ी है, नमाज ईद हो जाएंगी। और अगर खुतबा न पढ़ सके तब भी नमाज ईद हो जाएंगी, क्योंकि ईद की नमाज में खुतबा पढ़ना सुन्नत है और जुमा की नमाज में खुतबा पढ़ना वाजिब है। और उसके बाद जो है तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबाई मर्ज से पूरे आलम को और हमारे देश मुल्क को और हमारे शहर को ख़ास तौर से और हमारे अहल खाना को और बस्तियों को इससे नजात दिलाए और सब को शिफाए कामिला अता फ़रमाए। फिर से हमारे मुल्क को, मिल्लत और दीन को तरक्की की राह पर गामज़न फरमाए। आज मुल्क के हालात इंतहाई संगीन हैं। कोरोना वबा से हर कोई मुसीबत में है। मुल्क में ज़बरदस्त माशी बहरान है। इन हालात में अगर राजीव गांधी वज़ीर आज़म होते तो वो बेहतर तरीके से इन हालात से निपट सकते थे। ये बात आज कांग्रेस के शहर सदर नामदेव पवार ने कही। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर मुकामी कांग्रेस की जानिब से उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म भारत रत्न आजहानी राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर पूरे मुल्क में उन्हें याद किया गया। डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एक प्रोग्राम में कांग्रेस के मुकामी ओहदेदारों ने राजीव गांधी को ख़िराज अक़ीदत पेश किया, उनके मुजस्समे पर फूलों के हार चढ़ाए। इस मौके पर कारगुजार जिला सदर अनिल पटेल, शहर सदर नामदेव पवार, कारगुजार शहर सदर मोहसिन अहमद, साबिक़ रियासती वज़ीर कल्याण काड़े, एडीएम के डायरेक्टर अयूब खान, भाऊ साहब जगताप, नंद कुमार काले वगैरह मौजूद थे। इस प्रोग्राम में सोशल डिस्टेंस की पूरी एहतियात बरती गई। देशाचे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय राजीवजी गांधी यांची आज पुण्यतिथी आहे आणि ती पुण्यतिथी या ठिकाणी अभिवादन करण्याकरता शहर व जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। खरं म्हणजे आजचा जो पिरियड या ठिकाणी लॉकडाऊनचा पिरियड आहे आणि निश्चितपणानं या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये आम्हाला स्मरण होतं राजीवजी गांधी यांचं। जर या परिस्थितीमध्ये निश्चितपणानं राजीव गांधी जर असते तर संपूर्ण देशाला एक आश्वासित केलं असतं आणि संपूर्ण जनतेला त्यांनी आश्वासित केलं असतं आणि निश्चितपणानं आज वेगळा चांगल्या प्रकारचा दिवस आम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळाला असता। परंतु
आज देशाची परिस्थिती अशी निर्माण झालेली आहे की सर्वसामान्य माणूस असेल तो अत्यंत त्या ठिकाणी हाल अपेष्टेचं जीवन जगत आहे. त्या ठिकाणी लाखो लोकांना त्या ठिकाणी आज खायला अन्न नाही अशी परिस्थिती या देशामध्ये निर्माण झालेली आहे. कर्फ्यू पर सख्ती से अमल के लिए शहर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं. उसके तहत मुख्तलिफ इलाक़ों में कर्फ्यू के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत कर्फ्यू के चौथे मरहले में 677 अफराद पर जुर्माना आयद किया गया है और 171 अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है. कर्फ्यू को पुरअसर बनाने के लिए पुलिस ये कार्रवाई जारी रखेगी. कर्फ्यू के दौरान जारी हलचल को रोकने के लिए शहर पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है. पुलिस कमिश्नरेट से जारी इत्तला में बताया गया कि गुज़िश्ता रोज 12 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई. कर्फ्यू के चौथे मरहले में जुमला 171 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया और 677 अफराद से 1,64,800 रुपये जुर्माना भी वसूल किया गया. शहर पुलिस जोन में 107 अफराद पर केस दर्ज किया गया. सिडको जोन में 29, छावनी जोन में 17, वालूद जोन में 18 केस दर्ज किए गए हैं. इन तमाम के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई की गई और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना भी वसूल किया गया. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. नमस्कार. ADN दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा. मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे. जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोनापुढे हात टेकले आहेत. तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा. जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा. कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो. त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा. एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा. जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा. महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा. साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा. चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका. नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, ADN दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वॉर्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. में
नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। दरगाह हज़रत शाहनूर हमवी ट्रस्ट हमेशा से ही समाज की खिदमत और फलाही व तामीराती कामों के लिए मशहूर है। कोरोना कर्फ्यू के संगीन हालात में ट्रस्ट ने एक काबिल तहसीन कदम उठाते हुए 5000 गरीब ज़रूरतमंद में अनाज और किराना के किट तकसीम किए हैं। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के कौमी सदर मोहम्मद काजिम अली की मदद से ट्रस्ट ने गरीबों की मदद का ये काम अंजाम दिया है। दरगाहों और खानखाहों में अकीदतमंदों की जानिब से नजराने, अतियात वगैरह दिए जाते हैं। ऐसी रकूमात का आमतौर पर कोई ख़ास मसरफ़ नहीं होता और कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। ये रकमें तामीरात, खादिमीन की ज़रूरियात, तनख्वाहों और प्रोग्रामों पर खर्च कर दी जाती थी। लेकिन इन रिवायत से हटकर आज दरगाह हज़रत शाहनूर हमवी इंतज़ामी ट्रस्ट ने एक बेहतरीन और काबिल तकलीद कदम उठाया। दरगाह ट्रस्ट की जानिब से आज राशन और किराना के 5000 किट गरीब ज़रूरतमंदों में तकसीम किए गए। ट्रस्ट के सदर जावेद पटेल ने बताया कि अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के कौमी सदर मोहम्मद काजिम अली खान ने ट्रस्ट को इमदादी कामों के लिए ये रकम बतौर अतिया दी थी, जिसकी मदद से आज गरीबों में राशन और अनाज तकसीम किया गया। ये काजिम अली नवाब साहब अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी हैदराबाद, ये उनके तरफ से दी जा रही है। और किट में 4 आइटम है हमारे पास, आटा है, चावल है, दाल है और तेल है। और अभी लॉकडाउन आगे बढ़ने की आशंका है, तो ये जारी रहेगा या यहीं पे? नहीं, क्योंकि हमने इसलिए 1 महीना लेट इसलिए शुरू करे क्योंकि हमारे पास पिछले महीने की 20 तारीख को उनके अकाउंट में पैसे आ गए थे। हमारी वजह लेट करने की ये थी कि भाई अभी बहुत सारे लोग खिदमत के वास्ते खड़े हुए थे और हमने ये सोचे थे कि भाई आखिरी अशरे में ईद का टाइम रहता और इसी टाइम हमने कमेटी ने फैसला ली थी कि भाई आखिरी टाइम पे। मुसलसल कर्फ्यू की सख्तियों से शहरियान बेइंतहा परेशान हैं। इन हालात में जहां आज मुसीबत ज़दा लोगों को तसल्ली देने और उनकी मदद की ज़रूरत है, खाकी वर्दी के खुमार में मुब्तला कुछ पुलिस अहलकारों की ज़्यादती से लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। चेलीपुरा में आज ऐसा ही एक वाक़या सामने आया, जहां एक गरीब सब्ज़ी फरोश को कुछ पुलिस अहलकारों ने दुकान बंद करने के लिए इतना तंग किया कि बेबसी और झंझलाहट में आपे से बाहर होते हुए उस गरीब सब्ज़ी फरोश ने अपना सारा माल सड़क पर फेंक दिया। ये माल जो उसने उधार के पैसों से ख़रीदा था, ताकि कुछ पैसे कमाकर अपने गुजारे का इंतज़ाम कर सके। सख्त कर्फ्यू और पाबंदियों की वजह से एक तरफ लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, काम कारोबार बंद, कमाई का कोई जरिया नहीं। इन हालात में पेट की आग बुझाना एक संगीन मसला बन गया है। इन हालात में इंतजामिया ने अवाम की सहूलत के लिए सुबह 7 बजे से 6 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी है। इस वक्फे में कुछ बेरोजगार अफराद उधार पैसे लेकर सब्जी तरकारी वगैरह का कारोबार कर रहे हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सकें, लेकिन इस वक्फे में भी पुलिस इन पर बेजा सख्ती कर रही है। चेलीपुरा रास्ते पर ढील का वक्त होने के बाद भी पुलिस के जवानों ने एक गरीब सब्जी फरोश को अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर कर दिया। हालात से परेशान ये गरीब सब्जी फरोश इस ज्यादती पर इतना झंझला गया कि बेबसी और गुस्से के आलम में इसने अपनी सारी सब्जी सड़क पर फेंक दी। चेलीपुरा में गश्त पर तैनात पुलिस एहलकारों की संगदिली की तरफ शहर पुलिस के हुक्काम को तवज्जो देने की सख्त जरूरत है ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। 7 बजे से 1 बजे तक टाइम दे रहे हैं और बोले लगाओ मत, क्या बेचेंगे क्या खाएंगे? बैठा हुआ इंतजार चली हाँ, लाके पब्लिक का गलता करी हाँ, काई को दे रहे तुम टाइम 1 बजे तक खुला है करके, काई को डिक्लेयर कर रहे तुम 1 बजे तक खुला है करके हाँ? मंडी बंद करो, तुम मंडी से माल नहीं लाते, लोगों से पैसा लाके मंडी लाए वाली है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से बेरोजगार हुए मेहनतकश तबके की मदद के लिए ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से इंतहाई मुनज़्ज़म पैमाने पर काम जारी है। फाउंडेशन की जानिब से आज शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों के 1000 से ज़ायद अफराद में राशन और अनाज के किट तकसीम किए गए। फाउंडेशन के दफ्तर में पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के हाथों ये मदद तकसीम की गई। इसके अलावा फाउंडेशन की जानिब से कर्फ्यू की इब्तिदा से ही सैकड़ों गरीब खानदानों को खाना भी खिलाया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से मेहनतकश मजदूर आज हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। रोज कमाकर गुजारा करने वाले इस तबके पर सबसे ज्यादा मुसीबत आई हुई है।
ऐसे लोगों की मदद के लिए शहर की मुतअद्दिद तंजीमें और जमातें मुसलसल काम कर रही हैं। ग्लोबल फाउंडेशन भी कर्फ्यू की इब्तिदा से ही इंतहाई मुनज़्ज़म पैमाने पर इमदादी काम कर रही है। इस सिलसिले में आज फाउंडेशन की जानिब से पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के हाथों गरीब ज़रूरतमंदों में अनाज व किराना की किट तकसीम किए गए। फाउंडेशन ने 1000 से ज़ायद लोगों में किट बांटे। इसके अलावा फाउंडेशन की जानिब से पसमानदा इलाकों में रोज़ाना सैकड़ों अफराद को खाना भी खिलाया जा रहा है। फाउंडेशन के इन इमदादी कामों से मेहनतकश तबके के सैकड़ों खानदानों की परेशानियां काफ़ी कम हो गई हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना पर काबू पाने में इंतजामिया की हर तदबीर हो रही है नाकाम। आज फिर 60 अफराद हुए कोरोना से मुतासिर। नए मोहल्लों में फैल रही है वबा। घरों में ही अदा की जाएगी नमाज ईद। मौलाना नासिमुद्दीन मुफ्ताही ने बताया कैसी पढ़ी जाएगी नमाज। और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी। 171 अफराद के खिलाफ दर्ज हुई FIR। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।